I warmly welcome you all on the behalf of MLSA Air on our event. Microsoft Learn Student Ambassadors Air University chapter. Did I start the recording? Recording is started. Microsoft Learn Student Ambassadors Air University chapter is basically a campus-wide community operating under the Microsoft Learn Student Ambassadors program and Pakistan's city-wide chapter, Microsoft Learn Student Ambassadors Islamabad. This community basically focuses on empowering the students of Air University with the latest technological trends like Microsoft Azure, PowerShell, low-code development, developer technologies, and many more. I am Shiza Saqib and I am the host of this event. I am an Alpha Microsoft Learn Student Ambassador and currently enrolled in Bachelor's in Computer Science from Air University, Islamabad. I am also a technical lead of MLSA Air. Here with me is Alicia Naqvi. She is a Beta Microsoft Learn Student Ambassador and also lead of MLSA Air. Our speaker today is Mr. Usman Khan. I am very obliged to have you here, sir. He is a machine learning engineer, also a Microsoft certified trainer, and a Beta Microsoft Learn Student Ambassador. He is also the lead of Google Developer Students Club and technical lead at MLSA Islamabad. I warmly welcome you here, sir. You can start. Great. Now we are going to say. Can you guys hear me? Yes, we can. Okay. Let me just share my screen. Okay. Is the screen visible to you? Yes, the screen is visible. Okay, great. Hello, everyone. First of all, welcome to the event. And Shiza has already gave my introduction to you. I'll just go over a few things. Uh, I am, as you guys might already know, I am a beta MLSA and I'm a Microsoft certified trainer as well as a machine learning engineer. I am also a DSC lead for NUML and also a technical lead for MLSA Islamabad. So that was like a quick introduction from my side. And now let's hop into the topic of this event. Okay, now we're going to talk about machine learning. As most of you already know, like it's a huge buzzword everywhere. You can hear about machine learning. Uh, every startup that you come across, they are trying to implement artificial intelligence and machine learning. So like it's a hot topic right now. So like we're going to dive deep into machine learning and see uh, like uh, what machine learning actually is. We are going to debunking a few myths as well. So let's get started. Now, the very first question that you like might have is what even is machine learning? Well, if I put it into like layman's terms, machine learning is the process of building models that can understand and predict patterns in text, numeric, or visual data. It can be considered as teaching a computer what to do. Like if you have children and you're teaching your children something, that is the same case with computers as well. A computer doesn't understand you. He doesn't have, I wouldn't call it a he. It's like it's a non-living thing. So anyhow, like it doesn't understand things. So you have to come up with a way to make the computer realize and understand the patterns behind things. Like we usually know that in Pakistan, especially, we have summers in, let's say, April to August, and we have winters from usually from October to March or April. And we know that because we're currently living in this situation, but the computer does not know that. The only way computer is going to know that is by making it understand using some statistical model or mathematical model or something like that. So you have to come up with a solution to teach the computer just as you would teach a child that how things work. So you have to start from scratch. So that's what machine learning is. And now let's hop into different types of machine learning.
Machine learning is like sort of you can say a superclass or an umbrella under which different sort of domains lie. It can be considered as, let me just, okay, yeah. Let's talk about supervised learning. We have three types of machine learning: supervised, unsupervised, and reinforcement learning. And supervised can be considered as like a sort of machine learning in which you provide some examples. Like I gave an example a child that this is this thing and this is this thing. And let's say the child is an infant. He's around 2 to 3 years old, and you're teaching him basic stuff like shapes and everything. You present to him a square shape and you tell him that this is a square, and then you present to him a circle and then a triangle and so on and so forth. You gave him like sort of realistic examples on what is what. So the baby or the child learns those patterns. Like it does understand that a square has four sides, a circle doesn't have any side, it's rounded, it's a triangle has three sides. It can't explain that, but in its mind, it does like it can process those things. So the next time he sees any box, it's going to remember that, oh, this is the same thing that my mom or my dad told me. So this can be considered as a box. And when it comes across any circle or any triangle, it's going to recognize that this is a circle or this is a triangle or this is like whatever else things that we're talking about. So in any machine learning approach where you are providing some training examples, when you're training the model, you're explicitly providing that, okay, so we have like four sides, and these four sides mean that this is a square. Then you have another example that if it has three sides, it's going to be a triangle and so on and so forth. So in such cases, you're like dealing with supervised learning problems. And for unsupervised, these are the examples that don't have any like labels. During this training, you don't like sort of provide the machine learning model with any sort of labels. It can be considered as, let's say, uh, it wouldn't be a good example, but let's say someone has hopped into a river and he doesn't know how to swim, but gradually he uh, it's a basic instinct. He like tries to learn to swim, but eventually he either drowns or either he comes to shore, either he survives. He did not know how to swim, but still he managed to like make any decision. So that sort of problem can come under unsupervised learning. Another example can be like, let's say we have some data here with, and we have some data points like these. Let's say these data points are for like some sales data in which young people are buying these sort of stuff. And then we have another data for old people who are buying these stuff. Now, unsupervised machine learning model will usually deal such situations in which he's presented with this data. It doesn't have any labels. It doesn't have any explicitly explanation that this is young and this is old. These are old people and these are young people. The computer doesn't know that. So what it does is it basically marks a boundary around this, because you can logically see that these two data points are like separated from each other. So what it does is it separates the two data points from each other. So like these sort of problems also come under unsupervised learning. And by the way, like these clusters that we are making, this comes under clustering. We are going to talk about this as well. And then we have reinforcement learning. Reinforcement learning is a learning that you usually hear the media talk about. These are the buzzwords that companies use because these involves like real life implications of machine learning or AI. Self-driving cars are examples of it, or
if you might have heard about the new Tesla bot, that's an example of it. And there are countless examples of this. Now, let's talk about the specific types of machine learning. We've already talked about supervised, unsupervised, and reinforcement learnings. And by the way, if you guys have any questions, just like send them in the chat box and I'll happily answer. Okay, now let's talk about regression. What is regression? Regression is the supervised machine learning like type in which you're dealing with continuous values. Let's say you want to predict the price of some specific stocks tomorrow or yesterday or in any period of time. That comes under a regression domain. That's because we are not dealing with some discrete values. And by continuous, I mean that let's say 1.39. Sorry, my bad. Okay. These sort of things. Now, if your model is outputting values from ranging from 1 to let's say 1000, and there are continuous values like it can be 1.111117 and it can be 1.0001. It can be any value. That comes under the regression domain. And another example of regression can be, let's say, how much a student scores, like what will be the GPA of the student. That comes under the regression domain. And the other type that we have is called classification. Now, classification is very distinctive. It can be considered as either yes or no, this or that, or like you're comparing a few things. Let's say if I ask someone from my class that which semester are you from, it's obvious that he's either going to answer that he's from first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, or eighth semester, or either he's going to say, no, I'm not a student at all. So in this problem, we're dealing with categories. We're not dealing with any continuous values. We have specific values for that. Now it's up to you. How do you want to represent that? You can either represent by that by numerical values or something else. That's totally up to you. Okay, awesome. Muhammad H was saying that I should continue in Urdu, and Asma was also saying, uh, those who want me to continue in English, kindly like send in the chat box that I should continue in English. And if you guys want me to talk in Urdu, kindly message that I should talk in Urdu. And जो भी आप लोग language choose करेंगे, I'll go on with that. ठीक है, लाइक उर्दू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मसला ये होता है कि these sessions are recorded and कोई पाकिस्तान से बाहर का भी बंदा देख रहा होता है तो it would be beneficial for them. So anyhow, like if you guys want me to talk in Urdu तो उर्दू से स्टार्ट कर देते हैं. तो सुपरवाइज लर्निंग के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है. एंड एक बार मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ इन उर्दू बिकॉज ओके. सो सुपरवाइज्ड लर्निंग ऐसी मशीन लर्निंग की टाइप है जिसमें आप स्पेसिफिकली कोई लेबल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं. जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दी थी चाइल्ड की, कि एक चाइल्ड है आपके पास, अब आप उससे एक्सप्लिसिटली मोहम्मद, इट्स नॉट
बात ये नहीं है कि हम सर्वेंट्स, ओके सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट टॉपिक। एनी हाउ इसको कंटिन्यू करते हैं। अलीशा, आप काइंडली देख लें चैट में, अगर कोई है तो उसको डील कर लें आप। All right, अच्छा, you continue. ओके। एनी हाउ कंटिन्यू करते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग है हमारे पास, अनसुपरवाइज लर्निंग है एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। सुपरवाइज लर्निंग में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह कोई किसी बच्चे को आप कुछ सिखाते हैं एक्सप्लिसिटली कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, ये ट्रायंगल है, ये है, दिस इज़ अ स्कूल, और इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं ना, वो सुपरवाइज लर्निंग में आती हैं। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को एक्सप्लिसिटली नहीं बताते, मिसाल के तौर पे आप उसे स्कूल भेज देते हो, उसे कहते हो कि जो करना है आप करो, आप उसे एग्जैक्ट बता नहीं रहे कि क्या चीज़ कैसे होगी। वो लोगों को देख-देख के, और जैसे-जैसे वो लोगों के साथ उठता बैठता है, वो सीखता जाता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। उसे किसी ने बताया नहीं था। सो वो पैटर्न्स को डिटेक्ट करता है। वो देखता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आगे बैठते हैं, जो बाकी हैं वो पीछे बैठते हैं। तो ये माइंड में वो डिवीज़न कर रहा होता है बच्चा। तो इस टाइप के सिनेरियोज़ को आप कहोगे कि ये अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में आते हैं। और इसके अंदर फिर मज़ीद 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग के अंदर वही मैंने बताया है कि जो 2 सेपरेट सेक्शंस बना देता है वो, कि जिस तरह अभी स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्पल दी, कुछ आगे बैठते हैं, कुछ पीछे बैठते हैं, तो उसने डिवाइड कर दिया उन्हें। तो कुछ एल्गोरिथम्स इस बेस पे वर्क करते हैं। तो जो एल्गोरिथम्स इस अप्रोच पे वर्क करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अनसुपरवाइज़्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स। इसकी एग्ज़ाम्पल के मीन्स क्लस्टरिंग है हमारे पास। उसके अलावा के नियरेस्ट नेबर हम इसको कह सकते हैं, लेकिन एनी हाउ जस्ट फॉर एग्जाम्पल सेक आप उसे समझ सकते हैं, लेकिन के मीन्स क्लस्टरिंग इज द मेन टाइप ऑफ दिस। नाउ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। अब ये जो है ये इसलिए होता है कि काफ़ी बार आप ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हो जिसमें आपके पास फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेट्स से एक्सेल की एक फ़ाइल है, उसके अंदर आपके सारा बायोडाटा लिखा हुआ है। आपकी ईयर का साइज़, आपकी आई का साइज़, आपके हेयर लेंथ, आपके फेस कलर, सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर ए टू ज़ेड। ये तकरीबन लेट्स से 1000 फीचर्स बन गए हैं, और पाकिस्तान में ये सब का बना हुआ है। तो जस्ट आप इमेजिन करो ये कितना बड़ा डेटा होगा। तो हमारे पास तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं कि हम इतने बड़े डेटा को प्रोसेस कर सकें। तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक एल्गोरिथम के थ्रू इसे पास करते हैं। उससे ये होता है हमारे पास कि उससे ये जो फीचर्स थे, लेट्स से कि हेयर कलर, आई कलर, ये सारा कुछ, इसमें से सिर्फ वो सिलेक्ट करता है ये जो ये समझता है कि ये इम्पोर्टेंट है। वो सबको लाइक वो सबको मशीन लर्निंग मॉडल को पास नहीं करने देता। तो जिस टाइम आप डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के एल्गोरिथम में कोई भी डेटा पास करते हैं, तो वो आपको बता देता है कि ये फीचर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स से कि आपकी इंटेलिजेंस के बारे में अगर बात करें, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है। आपके हेयर हैं, इसका जो साइज़ है ये भी इम्पोर्टेंट है। कैसे? फीमेल्स का यूजुअली हेयर ज़्यादा लंबे होते हैं, मेल्स के कम होते हैं। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो एनी हाउ और एग्जांपल नंबर ऑफ फिंगर्स, इसका इस फीचर का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एक मेल की भी 5 फिंगर्स होती हैं, फीमेल की भी 5 फिंगर्स होती हैं, और एक यंग पर्सन की भी 5 फिंगर्स होती हैं, एक ओल्ड पर्सन की भी होती हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारी वैसे ही स्पेस ले रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको डायमेंशनैलिटी की रिडक्शन के एल्गोरिथम में पास करेंगे, ये उस फीचर को रिमूव कर देगा। स्टार्ट में हमारे पास 1000 फीचर्स थे, अब हमारे पास 200 रह गए होंगे, या जितने भी स्पेसिफाई आपने किए होंगे। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का ये पार्ट होता है। नाउ अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। अब इसके अंदर जो आता है वो ऐसी सिनेरियोज आते हैं जो रियल लाइफ एआई की इम्प्लीकेशंस हैं, उसको डील कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स का आपने सुना होगा। टेस्ला जो कि बहुत मशहूर कंपनी है, और वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। जो कार्स होती हैं उनकी, वो खुद ड्राइव करती हैं, और वो रियल टाइम डिसीजंस लेते हैं। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जांपल है। और इसकी एक और एग्जांपल ये होगी कि आप लोगों ने सोफिया
एक बॉट है एआई बॉट, उसके बारे में सुना होगा, और टेस्ला बॉट है। ये सारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एग्जांपल हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये इस मॉडल पे वर्क करता है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। उसके अंदर आप आपका मशीन लर्निंग मॉडल है, उसको आप एज अ चाइल्ड ही सपोज करेंगे। बच्चा आपका अगर कोई अच्छे काम करेगा, आप उसे कोई गिफ्ट दोगे, कोई कैंडी ले दोगे, कुछ ना कुछ उसे रिवॉर्ड दोगे। लेकिन अगर कुछ वो गलत काम करेगा, कुछ भी उसने ऐसा किया जो उसे नहीं करना था, तो उसे ऑब्वियसली पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी। तो सेम गोज़ फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स। उसमें भी यही होता है कि अगर वो ठीक सीख रहा है तो उसे रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं, अगर वो गलत सीख रहा है उसे पनिशमेंट मिलती रहती है। तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहता है। अब मैंने सेल्फ ड्राइविंग कार्स की एग्जांपल दी है, तो उसमें क्या होता है, वो जिस टाइम वो लर्न कर रहे होते हैं, वो एक्सीडेंट होते हैं उनके बहुत। तो वो एक्सीडेंट्स के थ्रू सीखते हैं। रोड पे एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन जो उनकी कंट्रोल इन्वायरमेंट होती है उसके अंदर होते हैं। तो उससे वो लोग सीखते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट फॉर अस। तो उससे वो लोग ये सीखते हैं कि ये चीज़ हमने नहीं करनी। तो दिस इज़ द पनिशमेंट पाथ, वी आर गोइंग फॉर रिवॉर्ड्स पाथ। सो इसलिए वो लोग ये चीज़ें नहीं करते। तो इस तरह वो लोग सीख जाते हैं कि ऑटोमेटिकली लर्न कर लेते हैं। तो दीज आर वर द थ्री टाइप्स दैट वी टॉक्ड अबाउट। अब इस डायग्राम से आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। ये मशीन लर्निंग है हमारे पास, रीइंफोर्समेंट लर्निंग की टाइप्स आ गई, गेम एआई भी आती है इसमें, सुपरवाइज्ड लर्निंग में फिर रिग्रेशन। लाइक ये स्लाइड्स भी आप लोगों के साथ शेयर करा दी जाएंगी, इफ यू गाइस वांट टू सी इट आफ्टर द इवेंट, तो आप लोग इससे सीख सकते हो। एनी हाउ, ये एग्जांपल्स हैं उसकी। नाउ, वर्ड सॉर्ट ऑफ लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स आर इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर आप कौन से फ्रेमवर्क्स एंड लैंग्वेजेस के साथ डील करते हो? एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है वो ये कि मैं कौन सी लैंग्वेज सीखूं। तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं आगे, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेकिन फॉर नाउ, मशीन लर्निंग के अंदर हम पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं, आर भी यूज़ कर सकते हैं, स्केला भी यूज़ कर सकते हैं, एंड क्लाउड सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्लाउड सर्विसेज हैं ये फ्री रिटन कोड होता है। ये आपने कोडिंग नहीं करनी होती। अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती, आप ये यूटिलाइज कर सकते हो। जिस तरह AWS हो गया, Azure हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, हुआवे क्लाउड हो गया, इस टाइप का सीन है। तो इसमें आप कर सकते हो, लेकिन इसकी जो डाउन साइड है वो ये है कि ये बहुत कॉस्टली होता है। क्लाउड्स बहुत महंगे हैं, और एंटरप्राइजेस के अलावा एज अ नॉर्मल पर्सन कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एनी हाउ, डेटा के फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं। एक चीज़ याद रखना कि कभी भी लैंग्वेज में स्पेशलाइजेशन नहीं होती। लेट्स से अभी आपने न्यू न्यू स्टार्ट किया है मशीन लर्निंग को सीखना। अब आपको ये नहीं चाहिए कि पाइथन को लेके आप 2 महीने इस पे स्टडी करते रहे, पाइथन पाइथन पाइथन। नो, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। हमेशा स्पेशलाइजेशन फ्रेमवर्क्स में होती है। और जिस टाइम आप मार्केट में जाएंगे, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि यार पाइथन में कितना काम किया हुआ है। पाइथन के किसी फ्रेमवर्क का वो पूछेंगे, जैसे साइकिट-लर्न, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, इस टाइप का पूछेंगे। तो आपसे, दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक स्टेप। आपने सीख लिया एक बार, उसके बाद आप मूव ऑन कर जाओ किसी फ्रेमवर्क पे। इस पे ज़्यादा टाइम आप स्पेंड ना करो। तो उसके अलावा डेटा के फ्रेमवर्क्स हैं, ये भी पाइथन में ही लिखे हुए हैं। ये पाइथन में ही लिखे हुए हैं। पांडस एक फ्रेमवर्क है, इसको आप सोच समझ सकते हो कि ये एज अ एक्सेल फॉर पाइथन है। आपके पास GUI नहीं होती, लेकिन एक्सेल वाले ऑलमोस्ट आप सारे फंक्शंस कर सकते हो। नमपाई है, ये यूजुअली लीनियर अलजेब्रा के लिए यूज़ होता है, जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस हैं उसके लिए ये यूज़ होता है। और उसके अंदर आप ये करते हो कि जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो होती हैं। और सबसे बड़ी बात जो है पाइथन की, वो ये है कि इसके 80 to 90% ऑफ द फ्रेमवर्क्स जो हैं वो C++ में लिखे हुए हैं। तो दैट्स वाई काफ़ी वो किया जाता है, इस चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है। अच्छा, ML के फ्रेमवर्क्स भी आपके सामने हैं, वेब के फ्रेमवर्क्स भी आगे आपके सामने, ये सारे पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं बाय द वे। ओके, अब आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस कि शुड यू लर्न पाइथन। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि पाइथन आपको सीखनी चाहिए या नहीं।
पाइथन आप उस टाइम सीखें व्हेन यू वांट टू डू एनीथिंग रिलेटेड टू लाइक anything related to web, machine learning or any sort of data processing. अगर आप चाहते हैं कि आप लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाएं पाइथन से, यू कॉन्ट बी दैट बिकॉज हर डोमेन डिफरेंट है, उस पर आपको टाइम स्पेंड करना होगा एंड देयर इज अ लिमिट ऑफ हाउ मच टाइम यू कैन स्पेंड. तो लेट्स से आप मशीन लर्निंग करना चाहते हो तो उस केस में आप पाइथन सीखें, लेकिन पाइथन सीख के आप लाइक किसी फ्रेमवर्क पे मूव कर रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम आप ना स्पेंड करें. और अगर आपने वेब सीखनी है, आपके पास बैकएंड के ऑप्शंस हैं फ्लास्क और जेंगो. ये ऑलरेडी हमने देखा है, फ्लास्क एंड जेंगो. लेकिन ये नोड जेएस और रिएक्ट वगैरह और लाइक बाकी जो लाइब्रेरीज हैं जावास्क्रिप्ट की, उस जितनी पावरफुल नहीं है. सो कीप दैट इन माइंड. पाइथन हर जगह सुटेबल नहीं है. इट इज़ शाइनिंग इन मशीन लर्निंग एंड लाइक डेटा प्रोसेसिंग इन दोज पार्ट्स, लेकिन वेब में उतनी प्रोमिनेंट अभी नहीं है. तो डू कीप दैट इन माइंड. अब मिथ्स की बात करते हैं. मशीन लर्निंग के अंदर एक काफ़ी लाइक मिथ्स वगैरह चल रही होती हैं कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यू नीड अ लॉट ऑफ मैथ्स फॉर मशीन लर्निंग. तो ये यूजली सिनारियो होता है लोगों का कि वो यूजली मशीन लर्निंग सीखने के लिए जाते हैं और दे गेट हिट बाय मैथमेटिक्स. तो इसके बारे में ये है कि दिस इज़ नॉट ट्रू. क्योंकि इसके बारे में ये ट्रू है कि यू नीड मैथ्स, लेकिन ये ट्रू नहीं है कि यू नीड अ लॉट ऑफ मैथ्स. एंड उसके अलावा आप लोगों ने क्राइटेरिया अपना रख दिया होता है कि मार्क्स, बिकॉज marks are like sort of the worst criteria that one can have about your intellect. काफ़ी बार ऐसे होता है कि आपकी मैथ्स अच्छी होती है लेकिन आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते. हैपेंस विद द बेस्ट ऑफ अस. तो आपने कभी भी मार्क्स को क्राइटेरिया नहीं रखना. अगर आपके लेट्स से 2 GPA आ रहा है मैथमेटिक्स में और आप इसलिए मशीन लर्निंग में नहीं आ रहे कि मेरी मैथ्स बहुत बुरी है, नो, दैट्स नॉट द केस. आप प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स और मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम्स देखें. काफ़ी बार ऐसे होता है कि आप की वो मैथमेटिकल थिंकिंग होती है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स. आपको चीज़ों की समझ आनी चाहिए. लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट के एक्स प्लस 2x+y. तो आपको पता होना चाहिए कि ये वेरिएबल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बेशक आप अपने से इक्वेशंस ना बना सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो इक्वेशंस बनी हुई हैं ऑलरेडी उसकी आपको समझ आनी चाहिए. क्योंकि अगर आप CS के स्टूडेंट हैं और आपने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन तक आप पहुंच गए, ऑब्वियसली यू हैव गॉन थ्रू कैलकुलस, इंटीग्रेशन, एंड दीज आर नॉट इजी सब्जेक्ट्स. अगर आपने वो कर लिए तो ऑब्वियसली दिस इज लाइक दिस विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू. तो अपने आप को इसलिए ML से दूर ना करो कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है. इट डज मैटर, लेकिन इतनी भी मैटर नहीं करती जहाँ पे आप कहो कि बस मैथमेटिक्स ही सब कुछ है. सो टू कीप दैट इन माइंड. और इसका जो अदर एक्सट्रीम है वो ये है कि जो लोग कहते हैं आपको मैथ्स चाहिए ही नहीं, आप मैथ्स पढ़ ही क्यों रहे हो, तो वो लोग भी गलत हैं. क्योंकि जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि आपको मास्टर नहीं होना चाहिए मैथ्स में, लेकिन बस समझ आनी चाहिए आपको. और मार्क्स को आपने क्राइटेरिया नहीं रखना. तो सेम इज़ द केस फॉर अदर थिंग्स. कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें मैथ्स लाइक सिरे से ना हमें ज़रूरत है, ना हमें फ़ायदा है, ना कुछ और है. थिंग इज़ कि यू नीड मैथ्स. चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैथ्स इज़ रिक्वायर्ड. लेकिन द गुड थिंग अबाउट दैट इज़ कि आपने खुद से वो नहीं करनी, फॉर्मुलेशंस नहीं करने. आपको बस समझ आनी चाहिए. यू नीड टू बी समवेयर इन बिटवीन. ये आप समझ सकते हो कि ये एक्सट्रीम्स हैं लोग. ये वाले लोग कहते हैं कि आपको मैथ्स आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए, आप कैलकुलस भी सारी इक्वेशंस खुद लिख रहे हो, इंटीग्रेशन भी खुद कर रहे हो. और ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि आपको मैथ्स आनी ही नहीं चाहिए, इसी तरह आप लोग आ जाओ. तो ये इस मीम में वो वाले लोग हैं, इम्पोर्ट टेंसर फ्लो STF करते हैं तो वो समझते हैं कि हम मशीन लर्निंग इंजीनियर बन गए.
No, that's not how it works. You need to understand the logic between things. कि अगर आप कोई चीज़ implement कर रहे हो, what's the reasoning for that? आप वैसे ही तो नहीं कर रहे। तो लाइक स्टार्ट में आप इस पे इसके सहारे पे चल सकते हो, लेकिन इवेंचुअली आपको लाइक आप स्टक हो जाओगे। ये चीज़ आपको हार्म ज़्यादा करेगी, लाजमी करेगी। तो इन एक्सट्रीम्स में आप लोग ना रहो, लाइन समवेयर बिटवीन। यहाँ पे ये आपकी जगह है, आपने यहाँ पे रहना है। आपने ना उन लोगों में रहना है जो कहते हैं मैथ्स हमें चाहिए ही नहीं, ना उन लोगों में रहना है जो कहते हैं कि बस मैथ्स ही सब कुछ है। आपने एक मिडिल मैन बनना है। ओके। नो, नाउ द अदर myth is के कुछ लोग ये लाइक स्टेप्स फॉलो करते हैं कि अभी उन्होंने पाइथन सीखी है, उसके बाद वो डायरेक्ट मशीन लर्निंग पे चले गए हैं। तो ये आप लोगों ने नहीं करना बिल्कुल भी। अलीशा, आई थिंक यू शुड ओपन अप द चैट, बिकॉज अगर किसी की कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, और अगर कोई ऐसा सिनेरियो अगेन होता है तो आप काइंडली लाइक उन्हें स्पेसिफिकली डील कर लेना, चैट को म्यूट ना करना। और अगेन अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग पूछ लें, फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस। ओके, सो मैं ये बात कर रहा था कि आप लोगों ने ये स्टेप्स फॉलो, लाइक इस बंदे वाली हरकत नहीं करनी है आपने। अगर आपने मशीन लर्निंग की तरफ आना है, फिर प्रॉपर अप्रोच लें। पाइथन सीखें, डेटा स्ट्रक्चर सीखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखें, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर सीखें, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, और फिर मशीन लर्निंग की तरफ आएँ। लेकिन अगेन इस चीज़ पे मैं एम्फोसाइज करूँगा कि इन एक्सट्रीम्स पे मत रहें। बी द मिडिल मैन। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हैं तो अब आपने ये नहीं करना कि आप 5 महीने लगा दें और इसको टोटली मास्टर ही कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग आप बनाएं, लाइक अच्छी रीजनिंग बनाएं, उसकी देन अगले स्टेप पे मूव ऑन करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की अच्छी रीजनिंग बनाएं, उसके बाद डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पे मूव करते हैं। इसमें आपने कोई लाइक बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं लिखने हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड थिंग्स। कैलकुलस में भी यही है। फनी थिंग इज यू डोंट नीड टू लर्न कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस जो एमएल में यूज़ होती है वो वही कैलकुलस है जो हम ऑलरेडी अपने लाइक एफएफएससी में यूजली पढ़ चुके होते हैं। एंड स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। कुछ लोगों ने पढ़ी होती है ड्यूरिंग देयर एजुकेशन टेन्योर, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होती है, तो टोटली अप टू यू। बट दिस इज़ द पार्ट दैट यू नीड टू फॉलो। इस बंदे की तरह आप लोगों ने हरकतें नहीं करनी। डू नॉट हॉप डायरेक्टली टू मशीन लर्निंग। ये स्टेप्स आप फॉलो करें। और एक और चीज़ ये कि एक और सबसे बड़ा लाइक मिसकंसेप्शन चलता है कि देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स फॉर मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। तो एज सम ऑफ यू माइट नो कि इसमें लाइक दिस इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। इसमें सीन ये है कि जॉब्स इसमें बहुत कम हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान। और लोग बहुत ज़्यादा हैं, और लोग जो ज़्यादा हैं ना वो यूजली बज़वर्ड्स की वजह से हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, इस टाइप के लोग बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे जिन्होंने जस्ट सेकंड जिन लोगों ने पाइथन सीख के डायरेक्ट मशीन लर्निंग की तरफ चले गए, उन्होंने ये स्टेप्स फॉलो ही नहीं किए। ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो उन लोगों की वजह से क्या हुआ है कि इंडस्ट्री में मशीन लर्निंग इंजीनियर, सो कॉल्ड मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, या यू कैन से एस्पायरिंग टू बी मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, वो लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो जब भी कोई ओपनिंग आती है एमएल की, अव्वल तो आती बहुत कम है, अगर आती है तो उस पर बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं। तो आपका कंपटीशन टफ है काफ़ी। तो इन केस आपने एमएल की जॉब करनी है तो यू नीड टू फेस द फैक्ट दैट इसकी जॉब्स बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, और स्पेशली इन पाकिस्तान। लेकिन एक लाइक फेज है ये कि स्टार्ट जिस टाइम आप बिगिनर फेज पे होते हो ना, तो बहुत लोग होते हैं। जैसे जैसे आप थोड़ा प्रोफेशनल लेवल की तरफ जाते जाते हो, फिर लोग कम होते जाते हैं। तो स्टार्ट में आपको डिफ़िकल्टी होगी, जॉब्स नहीं होंगी, लेकिन अगर आप रियली इंथुजियास्टिक हो इसके बारे में, तो वो आप इनिशियल फेज पास कर लोगे जो भी बिगिनर फेज था, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थे। लाइक उस टाइप के भी लोग थे जिन्हें कुछ आता ही नहीं था, जस्ट इम्पोर्ट कर रहे होते हैं स्टफ। लेकिन बाय द एंड ऑफ like the phase, like
you'll eventually get ahead, उन लोगों से आप आगे निकल जाओगे। ये चीज़ कभी भी आपको वो नहीं करेगी, डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ये जो ये सारा प्रोसेस था, आपने जो एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड किया है, तो ये स्टेप्स आप फॉलो करें, इंडस्ट्री में जो बाकी लोग हैं उनसे स्टैंड आउट करें, और अपने लाइक गोल्स रियलिस्टिक रखें। डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन द इंटरनेट। और दूसरी बात ये कि अगर आपका इंटरेस्ट है, आई वुड पर्सनली प्रेफर कि तब आप एमएल में आएँ। और जस्ट आप अगर इसलिए आ रहे हैं कि पैसे बहुत हैं इसमें, ये है वो है, तो आप लाइक बहुत डिसअपॉइंट होंगे। अच्छा, इसमें एक और जो काफ़ी लोग बात करते हैं कि यू नीड अ पीएचडी फॉर मशीन लर्निंग। इसका शॉर्ट आंसर है, यू डोंट नीड अ पीएचडी फॉर मशीन लर्निंग। इवन कि अगर आप बैचलर्स भी आपने नहीं किया हुआ, लेकिन आपके पास इंडस्ट्री की स्किल्स हैं, यू हैव ऑल दी स्किल्स, एंड ये सारा कुछ आपने किया हुआ है, प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की हुई है, लोगों को लाइक अच्छी आरओआई प्रोवाइड किया, आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यू विल गेट अहेड। आपको प्रेफरेंस दी जाएगी उन पीएचडी से जिन्हें कुछ भी नहीं आता। लेकिन यस, यू आर गोइंग टू फेस अ टफ टाइम, लेकिन स्टिल यू डोंट इवन नीड अ पीएचडी, बैचलर्स इज इनफ। लेकिन अगर आप कहीं रिसर्च ओरिएंटेड पोजीशन पे जाना चाह रहे हो, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड पोजीशंस इन एमएल, तो फिर आपको ऑब्वियसली एमएस या पीएचडी चाहिए होगा। लेकिन अगर आपने इंडस्ट्री में वर्क करना है, यू डोंट नीड वन। और जो काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि यू नीड टू बी अ सीएस मेजर टू बी एन एमएल इंजीनियर, कि आप कंप्यूटर साइंस के ही स्टूडेंट हो तब ही आप एमएल इंजीनियर बन सकते हो। तो ठीक है, लाइक what topics of Python should we know about before starting ML? अच्छा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किए है अब्दुल। आर लिखा आ रहा है आपके नेम के आगे, एनी हाउ। तो आपने सबसे पहले तो स्टार्ट करना है थ्योरेटिकल स्टफ से। ये जो मैंने आपको सारे लाइक फेजेस बताए हैं, ये आप फॉलो करें। इन केस आपने ये फॉलो कर ली है, उसके बाद प्रैक्टिकली आपने क्या करना है। प्रैक्टिकली आपने ये करना है कि सबसे पहले पाइथन लैंग्वेज सीखनी है। आगे मैंने लाइक रोड मैप गाइड किया हुआ है, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, इट वुड बी बेटर। ओके, सो अनदर क्वेश्चन इज के जो लोग पूछते हैं, यू नीड टू बी ए सीएस मेजर टू बी एन एमएल इंजीनियर। इसका शॉर्ट का आंसर ये है कि यू डोंट नीड टू बी अ मशीन लर्निंग एंड यू डोंट नीड टू बी सीएस मेजर टू बी एमएल इंजीनियर। जो मैंने आपको स्किल्स बताई हैं वो आपके पास आनी चाहिए। इट डजंट मैटर यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट्स, जहाँ से भी हैं आप, बस आप में वो स्किल्स होनी चाहिए जो एक एमएल इंजीनियर को चाहिए। So obviously you're going to succeed. इसमें एक और काफ़ी लाइक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, एकेडेमिया वर्सेस इंडस्ट्री। क्योंकि एमएल में आपको मौका मिलेगा कि आप एकेडेमिया और एजुकेशन में भी वर्क करें। आपके प्रोफेसर्स ने हो सकता है आपको रीच आउट किया हो कि कोई रिसर्च पेपर की इम्प्लीमेंटेशन करवानी है उन्होंने, और इंडस्ट्री में भी। तो एकेडेमिया और इंडस्ट्री में फ़र्क ये है कि एकेडेमिया में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, कि आप लेट्स से टेंसर फ्लो की जगह पाईटॉर्च यूज़ करना चाहते हैं, और उसमें कोई अपना 6 लेयर आर्किटेक्चर की जगह 2 लेयर आर्किटेक्चर यूज़ करना चाहते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। इवन कि हो सकता है आप कोई न्यू फाइंडिंग ले आओ और एक रिसर्च पेपर आप इम्प्लीमेंट कर दो उस पर, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इंडस्ट्री में ये है कि जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर ने या कंपनी ने एसओपीज डिफाइन कर दी हैं, आपने फॉलो करने हैं। अगर उन्होंने कहा है कि आपने टेंसर फ्लो यूज़ करना है, आपने टेंसर फ्लो ही यूज़ करना है, यू डोंट हैव अनदर ऑप्शन। तो ये डिफरेंस है। उसके अलावा ये डिफरेंस है कि लाइक आप जो भी करते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दी है, रिसेंटली आई सॉ एन ऐप के एक बंदे ने हदीस रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया था, कि आपके मूड को वो डिटेक्ट करके आपको हदीस रिकमेंड कर देता था। तो लाइक उस बंदे को किसी ने रोका नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आप भी कर सकते हो ये, अगर आप लाइक कुछ करना चाहते हो। तो इट इज़ अ रियली फन प्रोजेक्ट। गूगल आप करोगे आपको मिल जाएगा। एनी हाउ, एकेडेमिया में आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर आप लिमिटेड होते हैं। जिन प्रोजेक्ट्स पे वर्क चल रहा होता है, आप उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हो। जो आपके एसओपीज डिफाइन है उसके अलावा आप नहीं जा सकते। एनी हाउ, एकेडेमिया का ये है कि
इसमें आपकी पे यूजुअली कम होती है बहुत, क्योंकि रिसर्च काफ़ी बार ऐसे होता है कि फंडेड नहीं होती, तो आइदर या तो आपकी पे होती नहीं है या बहुत कम होती है, तो ये एक इशू होता है। और इंडस्ट्री का ये है कि इसमें पैसे बहुत होते हैं। और एक और इशू ये होता है कि जो इंडस्ट्री है वो बहुत फास्ट पेस्ड होती है और एकेडेमिया बहुत स्लो पेस्ड होती है। अगर आप एकेडेमिया की तरफ जा रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? लेट्स से आपको जॉब मिली है मशीन लर्निंग की, एनी हाउ। एक और चीज़ कि जिस टाइम आप लेट्स से मशीन लर्निंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको लाइक ऑफर मिल गई है, तो आपने क्या क्वेश्चंस पूछने हैं? आपने सबसे पहले लाइक कुछ चीज़ों पे फोकस करना है कि वो किन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अगर एकेडेमिया या रिसर्च का प्रोजेक्ट है तो यूजुअली ये होता है कि वो किसी ओल्ड पेपर या लेगेसी पेपर के पे वर्क कर रहे होते हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं या अपनी कोई इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे होते हैं, तो वो बहुत आउटडेटेड होती हैं। स्केला का भी कोड, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी होंगी जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनमें में भी कोड लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ें आप फेस कर सकते हो। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि हर बंदा ऑलमोस्ट रिसर्च कर रहा है, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं लेकिन पे कम है। उसके अलावा जो ऑप्शन है आपके पास लैंग्वेजेस का, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि रिसर्च पेपर में स्केला भी हो सकती है, आर भी। लाज़मी नहीं है कि पाइथन हो आपके पास। और मैंने बहुत कम केसेस में देखा है कि मैंने पाइथन में कोई रिसर्च पेपर देखा हो। हैं मॉडर्न पेपर्स हैं लेकिन बहुत कम है। तो लाइक अपनी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको रियलिस्टिक रखो और एवरेज पेस पोजीशन। लाइक इसके प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना इतने फास्ट पेस्ड नहीं होते, दे आर यूजुअली लाइक मीडियम पेस्ड। इसमें आपको इतना प्रेशर नहीं होता, जो भी आपका सुपरवाइजर है उसकी तरफ से आप अपनी पेस पे यूजुअली कर सकते हो। और इसमें ये है कि आप डिप्लॉयमेंट नहीं करते, ये सबसे लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपने मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया है ना, तो आपने उसे डिप्लॉय नहीं करना। यूजुअली होता है एकेडेमिया में, कभी कभी आप करते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं करते। डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि लेट्स से मैंने वो हदीस रिकमेंडेशन सिस्टम ही बनाया है, अब वो तो एक पाइथन की लेट्स से एमएल की एक फाइल है या टेंसरफ्लो की कोई फाइल है वो। अब उसको आपने एक ऐसे बंदे को कैसे अवेलेबल आप बनाओगे जिसको कुछ पता ही नहीं है सिरे से? तो आप उसे इस तरह अवेलेबल बनाओगे कि आप उसकी एक लाइक फ्रंट एंड बनाओगे, फिर बैक एंड बनाओगे, फिर अपना मॉडल कहीं डिप्लॉय करोगे और उसको किसी रेस्ट एपीआई के थ्रू कनेक्ट करोगे। ये पाइथन फ्लास्क और जेंगो में भी हो सकता है और क्लाउड एज़्योर और एडब्ल्यूएस में भी हो सकता है। तो ये सीन है। इंडस्ट्री में आप यूजुअली स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स सोटा कहते हैं उसे, उसके साथ आप वर्क करते हो। जिस तरह आजकल ट्रांसफॉर्मर्स चल रहे हैं एनएलपी में हगिंग फेस के, उनके साथ आप वर्क कर सकते हो। इंडस्ट्री में जो भी स्टैंडर्ड चल रहा होता है वो यूज़ कर सकते हो, फ्लेक्सिबल नहीं होते। और इसमें एक और चीज़ ये है कि फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एमएल एक ऐसी चीज़ है ना कि हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो हर कंपनी करना भी नहीं चाहती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंपनीज को ये चाहिए कि उन्हें लाइक बेनिफिट मिले। और पाकिस्तान में स्पेशली कंपनीज, बहुत कम कंपनीज हैं जो एमएल में वर्क कर रही हैं, वो इससे रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे। इश्यूज ये है, इस वजह से अपॉर्चुनिटीज कम है। खुद आप सोचो कि अगर आप बिजनेस ओनर हो, एमएल के थ्रू आप अपना लाइक कैसे बिजनेस को ग्रो करोगे? देयर आर मेथड्स, बिग डेटा की पाइपलाइंस और इनसाइट्स वगैरह होती हैं, उसके थ्रू करते हो, लेकिन वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ना लोगों के पास इतना लाइक रिसोर्सेज होते हैं, तो लोग फिर इस तरफ आते नहीं हैं। इन रिटर्न आपके पास कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और इसके अंदर एक स्टैंडर्ड है, आइदर आप पाइथन के साथ डील करेंगे, एसक्यूएल के साथ करेंगे या आर। बहुत कम केसेस में मैंने देखा है कि आप किसी और लैंग्वेज के साथ डील कर रहे हो। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हुए, और ये बहुत फास्ट पेस्ड है। इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि ये एकेडेमिया जो है एवरेज पेस्ड है, मीन्स के हो सकता है आपको 3-4 महीने मिल जाएं एक मॉडल को बनाने में, और इसमें हो सकता है आपको एक हफ्ता मिले मॉडल बनाने में। आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के आपके पास 1 वीक है, तो ये आपका होगा सेम। ओके, और इसमें डिप्लॉयमेंट भी होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है शाम की तरफ से, for those who will be looking for काफ़ी अच्छी सजेशन है शाम आपकी भी।
अच्छा सैयद, आपका क्वेश्चन है कि एक प्रॉपर हायरेबल मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट करना होता है। इसके बारे में हम एंड पे बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में रोड मैप मैंने एक आप लोगों के लिए बनाया हुआ है विच यू गाइस कैन फॉलो, और बाकी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड पे। नाउ आप अगर आप एआई में और एमएल में आ रहे हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइक कैरियर्स कैन यू एक्सपेक्ट। इसके अंदर आप लाइक डायरेक्ट एआई के अंदर भी आ सकते हैं। आप एआई के अंदर अगर आप आओगे तो आप लाइक नेट पिकिंग नहीं करोगे, आप मैनुअली मॉडल्स नहीं बनाओगे, आप थोड़ा चीज़ों को मैक्रो लाइक सॉर्ट ऑफ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखोगे। आप ऐसी चीज़ों को लाइक आप किसी बिजनेस को एज अ कंप्लीट पैकेज डिलीवर कर रहे हो सकता है आपने टीम रखी हो कंप्लीट उसकी डेवलपर्स की, या हो सकता है आप क्लाउड की कुछ सर्विसेज यूज कर रहे हो। ये मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था कि यू माइट कम अक्रॉस क्लाउड सर्विसेज। तो उस टाइप का सीन हो सकता है आपका। तो उसमें बहुत कम होता है कि आप मैनुअली कोडिंग कर रहे हो, आप कंप्लीट लाइक फ्रेमवर्क्स डिलीवर कर रहे होते हो, एक फुल फ्लैश चीज़ पे वर्क कर रहे होते हैं। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, रीइंफोर्समेंट लर्निंग आ सकती है इसके अंदर। एनी हाउ एमएल में आप वर्क कर सकते हो। प्योर एमएल जो है इसमें यूजली आपके पास आती है, यू कैन से प्योर न्यूमेरिकल डेटा को जिस टाइम आप डील करते हो ना, तो उस टाइम ये सिर्फ एमएल का डोमेन आता है। और जिस टाइम आप स्टेटिस्टिक्स को ले आते हो बीच में, बिजनेस डिसीजंस को ले आते हो, तो उसके अंदर फिर आप डेटा साइंस को टच कर जाते हो। बेसिकली ये स्टैटिक्स जो करते थे, वो लोग आगे जाके इस फील्ड में आते थे। इसका पहले नाम भी लाइक स्टैट से रिलेटेड होता था, बाद में जाके चेंज हुआ है तो डेटा साइंस। तो मेन चीज़ इसमें ये होती है कि आप स्टैट्स के जो भी मॉडल्स हैं, उसकी अप्रोचेस हैं, उनको यूज़ करके प्रिडिक्शंस करते हो। इसमें पाइथन और एमएल के जो फ्रेमवर्क्स हैं, दीज आर जस्ट टूल्स। मेन चीज़ आपकी इसमें स्टैटिस्टिक्स मैटर करती है। इसी वजह से आप लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा होगा जिनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता, और डेटा साइंस में वो काफ़ी इजीली आ जाते हैं, और एमएल में थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगेन इसमें वही बात आ जाती है कि मैंने जो आप लोगों को बताई है कि यू डोंट आपने अपने मार्क्स को क्राइटेरिया नहीं रखना कि अगर आपके मार्क्स लेट्स से 2 GPA आ गया तो आप कहो कि मैं स्टैट्स में बुरा हूँ या मैथ्स में बुरा हूँ। नो, प्रैक्टिकली आप गूगल पे जाएँ, कोई इसके प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसकी लाइक ट्यूटोरियल्स देखें, आपको ऑटोमेटिकली माइंड में समझ आ जाएगी कि ये चीज़ दिस क्लिक्स फॉर मी एंड दिस डजंट। तो अपने मार्क्स को क्राइटेरिया ना रखो, खुद एक्सप्लोर करो चीज़ों को। या उसके बाद हम दूसरी जो डोमेन है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये सबसे लाइक सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डोमेन है और बहुत प्रोमिनेंट डोमेन है, और दिस इज़ माय लाइक स्पेशलाइजेशन। मैं एनएलपी का ही स्पेशलिस्ट हूँ। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो एनी हाउ, अगर कुछ भी आप डील कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू टेक्स्ट इन एनी वे सॉर्ट ऑफ फॉर्म, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर आती है। इसके अंदर स्पीच भी आती है। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ अभी, और एक मॉडल मेरी आवाज़ से सुन के बता दे कि मैं सैड हूँ या हैप्पी हूँ, या अगर मैं आप लोगों को एक चैट में मैसेज लिख रहा हूँ कि लेट्स से श्याम हैड अ वेरी गुड सजेशन, तो ये मेरे कहने का क्या मकसद है। अगर ये मैं अच्छी बात कर रहा हूँ, बुरी बात कर रहा हूँ, ये नेगेटिव सेंटिमेंट शो कर रहा है या पॉजिटिव, तो ये सारा कुछ एनएलपी में आता है। आप उसके अलावा डीप लर्निंग के बारे में बात करते हैं। पहले कंप्यूटर विजन के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर विजन एनीथिंग रिलेटेड टू इमेज और वीडियोस। आप कुछ भी आप जिस तरह फेस डिटेक्शन हो गया, इमेज रिकग्निशन हो गया, यूजुअली एफआईपीस में आप लोग डील करते हो, तो इस टाइप का कुछ भी होगा ये कंप्यूटर विजन के अंदर आता है। ये सारी अपनी सेपरेट डोमेन्स हैं एमएल के अंदर। लाइक आप इन्हें सेपरेटली परस्यू कर सकते हो, और आप लोगों ने अभी से ही डिसाइड करना होगा कि आपने क्या करना है, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी कि आपने कहाँ जाना है। एंड अगेन यू कांट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो आपने कोई एक चीज़ को पकड़ना है। बाद में लाइक व्हेन you're like you specialize in one thing, then you can move on to some other thing if you like, लेकिन पहले आपने एक चीज़ करनी होती है। यानी हाउ डेटा एनालिसिस पे आते हैं अभी। डेटा एनालिसिस में यूजुअली आप लाइक की डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो, इनसाइट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो, जिससे आप डेटा को एनालाइज कर रहे होते हो, और जो भी बिजनेस होता है उसकी जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें आप इम्पैक्ट डालते हो कि लेट्स से कि कोई कंपनी है एबीसी,
वो कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है। तो अब उसने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, लेट्स से कि ब्लू एरिया में लॉन्च करना है, इस्लामाबाद में। तो अब वो लॉन्च करे ना करे, अब उसे कौन बताएगा कि यार तुम लॉन्च करो ना करो, ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? तो डेटा एनालिस्ट बैठेंगे वहाँ पे, जितना भी वहाँ के करंट रनिंग शॉप्स हैं, उसके कंपेटिटर्स हैं, उसके डेटा को एनालाइज करेंगे, लाइक मॉडल्स बनाएंगे, कुछ हो सकता है क्वेरीज रन करें, तो उससे वो उसे इंसाइट्स देंगे कि दिस विल बी ए सक्सेसफुल थिंग और नॉट। और नाउ कमिंग बैक टू डीप लर्निंग, डीप लर्निंग इज बेसिकली मशीन लर्निंग, बट इसका आर्किटेक्चर चेंज होता है। मशीन लर्निंग में आप कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज कर रहे होते हैं, इक्वेशन टाइप। लेकिन जो डीप लर्निंग है, इसके अंदर आप न्यूरल नेटवर्क्स यूज कर रहे होते हैं। न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें आपके ब्रेन में होते हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, लाइक इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड थिंग। और डीप लर्निंग भी एक सेपरेट डोमेन है। लेट्स से अगर आप कंप्यूटर विजन के स्पेशलिस्ट हो, एनएलपी के स्पेशलिस्ट हो, एमएल के स्पेशलिस्ट हो सकता है कभी आप डीप लर्निंग को अपनी लाइफ में टच ही ना करो, और हो सकता है कि आप सिर्फ डीप लर्निंग को ही टच करो। तो ये काफ़ी लाइक रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है, इस पे रिसर्च भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और इंडस्ट्री में भी लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक बहुत कम कंपनीज कर रही हैं इस पे। यूजली जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं वो ही यूज़ कर रहे हैं इसको, R&D में ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है डीप लर्निंग को। लेकिन इस रोड मैप में आप लोग देख लेना कि आप लोगों ने क्या अप्रोच यूज़ करनी है। इसको यूजली हम एंड पे करते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये आप सब कुछ सीख भी लो, फिर भी आपको there is something always left out from deep learning. अच्छा, एमएल का डेमो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। लेट्स जस्ट अ सेकंड कि एमएल के प्रोजेक्ट्स होते किस तरह के हैं। यहाँ yes, ML and DL are subsets of AI. Okay, so just give me a second. अच्छा, 5G and cloud computing. Are you talking about NLP or overall AI as a whole? एनएलपी, एनएलपी लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ तो काफ़ी इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डिप्लॉय योर मॉडल। लाइक लेट्स से आपने मॉडल बनाया है, जो हम लाइक हदीस वाली बात कर रहे थे। सो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लाइक सॉर्ट ऑफ डिप्लॉय इट समवेयर। तो आपने डिप्लॉय करने के लिए उसे ऑब्वियसली कोई ना कोई सर्विस यूज़ करनी होती है। और जस्ट अ सेकेंड।
Okay, so like I'm having some issues with the models. The kernel is not being selected right now. So ओके, सो आप लोगों को एनएलपी का मैं डेमो दिखा देता हूँ क्योंकि अभी दूसरा अवेलेबल नहीं है. देयर आर सम डिपेंडेंसी इश्यूज. ओके, सो इट्स करंटली लोडिंग द मॉडल. जब तक ये लोड होता है तब तक बाकी चीज़ों को ओवरव्यू कर लेते हैं. अच्छा, तो थोड़ा एनएलपी पे बात कर लेते हैं. अ, सैयद फसी saying कि every cloud service has a professional NLP model which makes it really exactly like सिर्फ लाइक एनएलपी का ही नहीं, उसके पास लाइक हर क्लाउड सर्विस में ऑलमोस्ट हर किस्म के मॉडल होते हैं. कन्वर्जेशनल एआईज भी होते हैं. एडब्ल्यूएस के पास सेज मेकर है जो कि चैटबॉट्स क्रिएट करता है. तो इस टाइप के हर क्लाउड सर्विस में लाइक कोई ना कोई फीचर होता है. डेटा साइंस के भी होते हैं, पावर बीआई वगैरह हो गए. उसके अलावा एनएलपी के भी फीचर्स होते हैं. लेकिन द थिंग इज़ के वो बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं, तो इसलिए कंपनीज ट्राई करती हैं कोई इन हाउस सोल्यूशन ही यूज़ करें. दैट्स व्हाई. ओके, सो एनएलपी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि एनएलपी है क्या. एनएलपी बेसिकली जो चीज़ है ना, वो सिर्फ एमएल का डोमेन नहीं है, वो लिंग्विस्टिक्स का भी डोमेन है. क्योंकि लेट्स से आपको कोई फ्रेंड है जिसने एमए इंग्लिश किया हुआ है या एमफिल इन इंग्लिश किया हुआ है, तो अगर आप एनएलपी में वर्क कर रहे हो स्पेशली टेक्स्ट में, वो आपकी हेल्प आउट भी कर सकता है. क्योंकि इन एनएलपी यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स हैं या किसी भी लैंग्वेज स्टडी की प्रॉब्लम है, तो आप उसको मशीन लर्निंग के थ्रू सॉल्व कर रहे हो. सो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट एज वेल. अगर आप एनएलपी में आ रहे हो, आप ऐसी चीज़ों को टच करोगे कि किसकी किसके साथ कितनी डिपेंडेंसी है. ओके, सो आई थिंक दैट्स लोडेड. लेट्स सी. What's the issue? एनी हाउ, जब तक ये होता है तब तक इस पे बात कर लेते हैं. एनएलपी के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि इट कैन बी आइदर टेक्स्ट और स्पीच. और एनएलपी की भी फिर आगे टाइप्स हैं, एनएलयू और एनएलजी. एनएलयू में ये होता है कि आप लाइक उसको जितनी भी लाइक लेट्स से you're एनालाइजिंग अ पैराग्राफ, तो इसको आप इससे आप सेंटिमेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इसके अंदर आप डिपेंडेंसीज चेक कर रहे हो, लाइक जितना भी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है ना, उसके साथ आप जो कुछ भी कर रहे हो, दैट कम्स अंडर द अंडरस्टैंडिंग पार्ट. या यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक ऑन द रिवर्स, लाइक साइकोलॉजी. लाइक जो भी काम आप जनरेशन का कर रहे हो, लेट्स से कि अगर मैं चैट में कोई रिप्लाई कर रहा हूँ, तो वो रिप्लाई मैं नहीं कर रहा, कोई चैट बॉट कर रहा है. तो ऐसी चीज आती है नेशनल लैंग्वेज जनरेशन के अंदर, एनएलजी के अंदर. तो उसके अलावा जितना कुछ भी है एनएलपी का, वो सारा एनएलयू के अंदर ही आता है. सो उसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि these two are like sort of clusters. One is एक क्वेश्चन भी आया था कि आर डी एस एन एम एल सब डोमेन ऑफ एआई. तो
ये इससे आप लोग जज कर सकते हो कि एनएलपी कहाँ पे स्टैंड करता है। लिंग्विस्टिक्स ये वही वाला जो इंग्लिश वाला मैंने आपको बताया ये वो वाला डोमेन है, एंड दिस इज ये डोमेन। और डीएल देखो ये दोनों को टच करता है। तो दिस इज लाइक समथिंग that you'll experience if you like apply or some issues with that. Okay. Now what can you do with NLP? कि NLP के साथ आप कर क्या सकते हो? NLP में आप like sort of टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर सकते हो। लेट्स से ये मैंने एग्जांपल भी दी थी कि अगर मैं भेज रहा हूँ चैट बॉक्स में कहते श्याम इज सॉर्ट ऑफ अ ग्रेट पर्सन, तो अब ये किस कैटेगरी में आता है? ये स्पैमिंग में आता है या लाइक कोई अच्छी बात है, या कोई भी आपने क्लासेस रखी हो सकती हैं। तो ये उसको फिल्टरिंग करना, क्लासिफाइंग बिटवीन मल्टीपल थिंग्स, वन और टू थिंग्स और टू और मोर थिंग्स, तो वो क्लासिफिकेशन में आता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, बाइनरी और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बाइनरी में सिर्फ दो क्लासेस होती हैं, जिसना येस और नो, और मल्टी क्लास में मल्टीपल होते हैं, जैसा वो हमने सेमेस्टर वाली एग्जांपल ली थी कि फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो, या 8 में या 7 में 6 में। तो सेंटिमेंट एनालिसिस में ये होता है कि आप एनालाइज करते हो कि जो भी आप कह रहे हो उसका सेंटिमेंट क्या है। जिस तरह सेम वर्ड ले लो कि एहतशाम इज़ अ ग्रेट पर्सन, तो इज़ एहतशाम इज़ अ ग्रेट पर्सन, ये जो मैं टर्म कह रहा हूँ ये अच्छी लाइक इट इज़ इट extra it is showing a good sentiment or a bad sentiment, it is a happy expression or sad expression, so these sort of things come under sentiment analysis part. और टॉपिक मॉडलिंग की बात करें तो ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का पार्ट है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि आपने किसी लेट्स से कि काफ़ी बार आपने आर्टिकल्स देखे होंगे किसी भी न्यूज़ वेबसाइट पे, साइड पे उसके टैग्स आ रहे होते हैं कि ये साइंस से रिलेटेड है, न्यूज़ से रिलेटेड है। तो आपको क्या लगता है अगर उस साइट में हर सेकंड में एक आर्टिकल अपलोड हो रहा है, तो कोई बंदा मैनुअली ये सारा कुछ हैंडल कर सकता है कि अच्छा ये साइंस से रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये करूँ? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये जो प्रॉब्लम है ये आती है टॉपिक मॉडलिंग के अंदर। बेसिकली क्या होता है, वो न्यूज़ आपका मॉडल न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ता है, उसको आपने एक स्पेसिफिक नंबर दिया होता है कि इससे आपने 7 टॉपिक्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। वो उसमें से 7 टॉपिक्स एक्सट्रैक्ट करके बता देता है कि इन 7 चीज़ों के बारे में बात हो रही है इस पूरे आर्टिकल में, और वो एक्यूरेट भी होता है। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है, नेम एंटिटी रिकग्निशन, हम वही देख रहे थे। देयर आर सम इश्यूज हियर। अच्छा, एनी हाउ लाइक ये कोड है उसका प्रोजेक्ट का, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। ये उसमें रोड मैप में इंक्लूडेड है बाय द वे। ओके। नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन, इसमें बेसिकली ये होता है कि लेट्स से आई एम सेइंग इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो उसके अंदर अब एंटिटीज कौन कौन सी हैं? इस्लामाबाद है कैपिटल है, और पाकिस्तान है। इस इस्लामाबाद इज सिटी, कैपिटल इज लाइक सॉर्ट ऑफ अ नाउन, और पाकिस्तान इज अ कंट्री। अब ये आपने अपने मॉडल को कैसे समझाना है कि ये चीज़ ये है, ये क्या है? तो एनएलपी की ही ये प्रॉब्लम है, और इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। ओके Zohaib, वी आर जस्ट वाइंडिंग अप, लाइक थोड़ा सा ही रह गए हैं। ओके, और टेक्स्ट समराइजेशन जनरेशन की मैंने ऑलरेडी बात कर दी है। और टेक्स्ट समराइजेशन ये होता है कि लाइक जितनी भी आपको टेक्स्ट दिया जाता है उसकी 1 या 2 लाइन समरी हो जाती है, और चैट बॉट्स में भी ये होता है। और इसकी एग्जांपल होती है डिपेंडेंसी पार्सिंग। ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना कि आपको अपने इंग्लिश हमारे फ्रेंड की ज़रूरत पड़ सकती है, ये वो है। लेट्स से दिस इज अ सेंटेंस। अब सेंटेंस किस पे डिपेंडेंट है, ये सारा कुछ करना ये पार्सिंग में आता है, इसको डिपेंडेंसी पार्सिंग कहते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है। उसके अलावा नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन, ये उसका लाइक सॉर्ट ऑफ लाइव वो है, डेमो है। उसके अलावा अब एनएलपी को यूज़ कौन करता है? एनएलपी को अमेज़न यूज़ करता है। और अमेज़न कैसे यूज़ करता है? अमेज़न ऐसे यूज़ करता है कि वो आपने कभी भी कोई प्रोडक्ट बाय की हो ना, उसके नीचे रिव्यूज़ आ रहे होते हैं। तो रिव्यूज़ जो आ रहे होते हैं उनको बेसिकली वो एनालाइज़ करता है अमेज़न। प्रोडक्ट की रैंकिंग में ये चीज़ हेल्प करती है कि अगर किसी प्रोडक्ट के वो अच्छे हैं, क्या नाम है,
या अगर किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज अच्छे हैं तो उसकी रैंकिंग अच्छी देता है, अगर बुरे हैं तो बुरी देता है। गूगल भी ऑलमोस्ट इसी, गूगल थोड़ा डिफरेंटली यूज करता है, ऐसे कि अ, आपने काफी बार देखा होगा कि आप अगर कुछ सर्च करें तो आपकी एग्जैक्ट टर्म वो मिलती ना भी हो, तो आपको रिजल्ट आ जाते हैं, उससे रिलेटेड आ जाते हैं। तो ये बेसिकली होती है सिमिलैरिटी, टेक्स्ट सिमिलैरिटी के अंडर आता है ये वाला यूज केस। और गूगल लाइक एनएलपी में टॉप पे कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एनएलपी यूज़ कर रहा है। और बाकी ये सारे लाइक कंपनीज भी यूज़ कर रही हैं इसको हैवीली। उसके अलावा एनएलपी के बारे में आपको क्यों केयर करनी चाहिए, व्हाई शुड यू इवन थिंक अबाउट लर्निंग अबाउट एनएलपी। तो थिंग इज के एनएलपी जो है ये रिसर्च में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। अभी भी आप अपने किसी प्रोफेसर से जाके पूछ लो वो किस लाइक सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, सीएस के प्रोफेसर से, 90% ऑफ द टाइम दे आर सेइंग समथिंग रिलेटेड टू एनएलपी। तो इसमें आप काफ़ी लाइक बेनिफिट ले सकते हो, और इसमें आपको रिसोर्सेज चाहिए ही नहीं, आप अपने लाइक फारिग से लैपटॉप पे भी रन कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंप्यूटर विजन या कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स पे जाएं, उसको बहुत अच्छा जीपीयू चाहिए रन होने के लिए। इसमें भी चाहिए, लेकिन लाइक जिस फील्ड में हम हैं उस पे भी आपको नहीं चाहिए। और वेरी लेस सैचुरेटेड फील्ड है, यहाँ पे इतने लोगों को पता भी नहीं है कि एनएलपी एग्जिस्ट करती है। तो ये सीन है। उसके अलावा ये है कि आप इसमें कभी बोर नहीं होंगे। GPT-3, अगर आपको इसका नहीं पता, ये इसके बारे में आप सर्च करो। बेसिकली ये एक मॉडल था जो निकाला था उसने, ओपन एआई ने, आई थिंक सो। तो ये इवन आपका कोड तक लिख देगा। अगर आप इसे कहो कि फ्रंट एंड वेबसाइट मैंने बनानी है, आप इसे बताओ, ये आपके लिए सारा कुछ जनरेट कर देगा, और ये एनएलपी के अंदर आता है। अच्छा, अब मशीन लर्निंग आपने सीखनी कैसी है, रोड मैप की जो मैं बात कर रहा था। बेसिकली सबसे पहले तो आपने ये करना है, अगर आप कुछ भी नहीं आता, सबसे पहले आपने सी प्लस प्लस सीखनी है। नाउ अब आप लोगों में से काफ़ी कह रहे होगे कि यार सी प्लस प्लस बहुत पुरानी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस क्यों सीखनी है। आ, आप चाहते होगे कि आप किसी मॉडर्न लैंग्वेज से स्टार्ट करो, बट द थिंग इज़ के जो सी प्लस प्लस है, ये ऐसी लैंग्वेज है कि जहाँ पे लाइक हर चीज़ कवर की गई है। बाकी लैंग्वेजेस में वो चीज़ें शॉर्ट कर दी गई हैं, जैसा पाइथन है। अब अगर आपने कोई लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है, सी प्लस प्लस सीख लो, उसके बाद सारी लैंग्वेजेस आपको आसान लगेंगी। दैट इज़ माय पर्सनल सजेशन, और ये बेनिफिट आप देखोगे आगे अपने लाइफ में। उसके बाद आप पाइथन लाजमी सीखो, ये मैं नहीं कह रहा कि आप कुछ ना सीखो, लेकिन पहली लैंग्वेज आपने सी प्लस प्लस सीखनी है। उसके बाद आप ऊप सीखो, सी प्लस प्लस या पाइथन में, जिसमें भी आप प्रेफर करते हो। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सी प्लस प्लस में ही सीखो, फिर पाइथन में मूव ऑन करो। ऊप इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये एक मेथोडोलॉजी होती है। उसके अलावा आप थियोरेटिकल फाउंडेशन से स्टार्ट करो मशीन लर्निंग की, जो थ्योरी है, जो लाइक लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला क्या है, MX प्लस भी है, होता है यूजली, और लॉजिस्टिक का क्या है। तो ये सारा कुछ आप थियोरेटिकली पहले चीज़ें कवर करो। और सबसे बड़ी बात कि आप प्री प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ो कि प्री प्रोसेसिंग क्या है एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके पूरे एमएल मॉडल के रिजल्ट्स ही चेंज कर सकता है। प्री प्रोसेसिंग, लेट्स से अगर आपका मॉडल है उसके अंदर एक चीज़ की प्राइस 50 रुपये है, लाइक उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, एक चीज़ की चीज़ प्राइस 50 रुपये है और दूसरी चीज़ की प्राइस 50,000 रुपये है। अगर आप सिर्फ उसको ग्राफ में प्लॉट भी करो ना, तो वो बहुत आपस में दूर हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप रियल लाइफ में देखते हो कि आपने उसे एक स्केल पे करना होता है कि लेट्स से 0 से या 1 के दरमियान हो। अब उसको कैसे करना है, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो ये सारा कुछ आपने लर्न करना होता है, और यही चीज़ आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप ज़्यादा सीखोगे। अच्छा, उसके अलावा आपने जिस टाइम थ्योरेटिकल आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे, लाइक कोडिंग जो है। और वो सारी चीज़ें आप ना भूलना जो मैंने आप लोगों को बताई हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टैटिस्टिक्स और दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप थ्योरेटिकल में ही आता है वो सारा कुछ। एनी हाउ, उसके बाद आप कोडिंग उसकी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप कंपैरिजन करेंगे कि ML DL और बाकी जो डोमेन्स हैं, NLP CV, उन सब में डिफरेंस क्या है। सबको थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे, डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा।
डीप लर्निंग को भी पढ़ें, एमएल को भी पढ़ें, कंप्यूटर विजन को भी पढ़ें, डेटा एनालिसिस को भी पढ़ें, डेटा साइंस को भी पढ़ें, और फिर लाइक अपने पास नोट करते जाएं, और फिर चारों में पांचों में देखें कि आप किसके साथ क्लिक करते हो, विच थिंग इज मोस्ट सुटेबल टू यू। ओके, तो वो काम आप करें, फिर उस फील्ड को चूज करके लाइक उसी को परस्यू करें, और उसके बाद आप डीप लर्निंग की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी तक हम डीप लर्निंग पे नहीं आए थे, ये सारा कुछ आप एमएल में ही कर रहे थे, फिर आप डीप लर्निंग पे मूव करें। इसकी लाइक वो ही अलग है, पूरी फील्ड ही अलग है। अच्छा, अब इसके बाद जो मैं कोर्स आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप लोग करें, वो है 365 डेटा साइंस। ये पेड कोर्स है, लेकिन मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि ये करो। ये काफ़ी फेमस यूट्यूबर्स का है, आई थिंक सो, वो भी इसमें पढ़ाते हैं। एनी हाउ, ये लोग आप लोग करो, लेकिन इन केस आप लोग इसको पे नहीं करना चाहते, या आप लोग समझते हो कि लाइक यू डोंट हैव द लाइक फाइनेंशियल एड फॉर लाइक गेटिंग दिस कोर्स, फिर आप क्या कर सकते हो, मेरे गिटहब पे आप लोग जाओ, मैंने एक रिपोजिटरी बनाई हुई है इस नेम से। तो इसके अंदर क्या है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये भी रन नहीं हुआ। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, एनी हाउ, अभी आप यहाँ पे आ गए। ये बेसिकली रिपोजिटरी है उसकी 365 डेटा साइंस की। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है कि इसके अंदर सारी मैंने रिसोर्सेज जो हैं 365 डेटा साइंस के कोर्स की, वो सारी यहाँ पे अपलोड की हैं, एक्सरसाइज फाइल्स और नोटबुक्स और सारा कुछ है इसके अंदर। ये आप देखें, और सारा कुछ सेपरेट डिवाइड हुआ है, सिर्फ इसमें वीडियोस नहीं है, लेकिन बाकी सारी फाइल्स हैं इनों के अंदर, लाइक जो जुपिटर नोटबुक्स होती हैं, इस टाइप की सारा कुछ है। तो ये आपको एक लाइक सॉर्ट ऑफ रोड मैप आपके लिए बेस्ट है अगर आप इस साइट पे आना चाहते हो। इसके अंदर 3 प्रोजेक्ट्स भी हैं, टाइम सीरीज 4 हैं बल्कि। क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग है, टाइम सीरीज इन पाइथन है, कस्टमर एनालिटिक्स है, और वेब स्क्रैपिंग है। और अगर गिटहब का आप लोगों को नहीं पता, इसके बारे में भी आप लोगों को लाइक इन फ्यूचर बता दूंगा, आप लोग गूगल भी कर सकते हो। एनी हाउ, ये लिंक्स मैं आप लोगों के साथ सारे शेयर कर दूंगा, यू गाइस कैन लाइक विजिट। अलावा एंड्रयू एनजी का एक कोर्स है उस पे, कोर्सेरा पे, वो भी पेड है, लेकिन उस पे आपको फाइनेंशियल एड मिल जाएगी। तो वो लोग आप फॉलो करो, उसका मशीन लर्निंग पे भी है, डीप लर्निंग पे भी है, और एनएलपी पे भी, ये तीनों कोर्स मैं रेकमेंड करता हूँ। उसके अलावा डेटा कैंप है, एक वेबसाइट है, ये आप लोग फॉलो कर सकते हो। ये भी पेड है, लेकिन इसका भी मेथड है फ्री लेने का। वो ये है कि आप गिटहब स्टूडेंट पैक वो लें, क्लेम करें, उसके अंदर 3 मंथ्स का आपको फ्री डेटा कैम्प मिल जाएगा। तो उसके अंदर आप जितने कोर्सेज, जितने प्रोजेक्ट्स करने हैं, फ्री में करें। उसके अलावा इंटेलीपाथ, ये एक एनएलपी का कोर्स है यूट्यूब पे, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। इस बेसिकली मैं भी आप लोगों के साथ एक गूगल डॉक्स भी शेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर और भी लिंक्स हैं, और वो मैं साथ साथ अपडेट भी करता जाता होता हूँ। इन केस आप लोगों ने देखना हो तो उसको देख सकते हो, अभी मैं लिंक भेज देता हूँ उसका यहाँ पे। एनी हाउ, गिटहब स्टूडेंट बैग के लिए आप लोग अप्लाई करो, और इसमें आप लोगों को और भी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा there are some technical problems with the code. Seems like there is some sort of dependency issue. Okay, so let's try it one more time. By the way, this is like Google Colab. इसमें आप फ्री वो कर सकते हैं, लाइक फ्री आपको रिसोर्सेज मिलते हैं। एनी हाउ,
लाइक आई शेयर दिस कोड विथ यू इन अ व्हाइल। और उसके अलावा ये रिसोर्सेज हैं, वो ये उसकी फाइल है गूगल डॉक्स की। और इसमें मैंने डिस्कॉर्ड का भी लिंक डाला हुआ है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड का अगर किसी को नहीं पता तो लाइक ज्वाइन कर लोगे, आपको समझ आ जाएगी। उसके अलावा एक जॉब ग्रुप है जो कि आई पर्सनली रन, उसमें दैट इज़ फॉर ऑल इंडियन इस्लामाबाद पीपल ओनली। तो जो भी लाइक अपॉर्चुनिटी आती है, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसके अंदर शेयर कर दूँ। और अगर आपने पाई एमएल को स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप एनाकोंडा इंस्टॉल करें, डायरेक्ट पाइथन ना इंस्टॉल करें, दैट इज़ माय रिकमेंडेशन। क्योंकि उसके अंदर आप चाहिए, मैंने लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ओके, तो डायरेक्ट आप लोग पाइथन ना इंस्टॉल करें, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें आपको मैनुअली इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। और काफ़ी बार ऐसे होगा कि आप 32 बिट कर दोगे इंस्टॉल, और काफ़ी लाइब्रेरीज 32 बिट के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो वो आपके लिए काफ़ी रन टाइम इशू क्रिएट कर देगा। तो डायरेक्ट आप एनाकोंडा इंस्टॉल करें। ये बेसिकली एक पैकेज है, इसके अंदर आपको जुपिटर नोटबुक भी मिलता है, लाइक और बहुत चीज़ें मिलती हैं, कुछ लाइब्रेरीज पे इंस्टॉल होती हैं। और वी एस कोड आप इंस्टॉल करें, वी एस कोड आप इंस्टॉल करेंगे तो वो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे लाइक आप सिंपली अपनी जुपिटर नोटबुक्स वगैरह रन कर सकते हैं, सिंपली आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। उसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, उसके अलावा लाइक देयर इज लाइक सॉर्ट ऑफ स्मॉल गेम व्हिच we've created. Just give me a second. Basically, it's Kahoot. Like a quiz type सा है. It will be a fun game. मैं बताता हूँ आप लोगों को. Okay, so let's start. By the way, do fill in the form. Like feedback form आप लोग fill कर लो, आप लोगों को certificate भी मिल जाएगा इसका. Let me see if it's working or not. Yes, it's not working. Kindly check कर लें सर. ओके, मैं ठीक कर देता हूँ। और जो मैंने आपको गूगल डॉक्स का बताया है, बेशक इसको आप बुक मार्क कर लें, इसी में हम ऐड कर देंगे या अभी आपको साथ शेयर कर देते हैं हम।
ओके, आप लोगों ने अभी ये करना है कि इस लिंक पे जाएं, kahoot.it पे सिंपली, और ये पिन एंटर करें। इस लिंक पे जाना है आप लोगों ने। लिंक मैंने शेयर कर दिया, और ये पिन आप लोगों ने एंटर करनी है। Sayyid Fasi is here, Samra is here as well. Come on guys, जस्ट इस लिंक पे जाएं आप लोग, kahoot.it, एंड ये पिन एंटर करें। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये दिस वाज जस्ट अ पिन। Abdul Rahman is here as well. Asma Shabir is here as well. Zaklan, Osama. Hassan is here. Fasi is here. Come on, guys. Maha is here as well. We've got 10 people. Afaq is here. Rafia. Rafia is here as well. Ahmad. Let's wait 5 more minutes, then start करते हैं। Kindly जिसने like join करना है आप लोग कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसको मैं समझा देता हूँ आपको। इसमें होगा क्या, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आएगा, और आपके मोबाइल या कंप्यूटर जहाँ से भी आप लॉग इन हुए हैं, वहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस नज़र आएंगे, आइदर स्क्वायर, ट्राइंगल, और लाइक डिफरेंट शेप्स होंगी, कलर्स भी होंगे उनके। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने सिंपली उसको लाइक सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको ऑप्शन ठीक लग रहा है। स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा क्वेश्चन भी और आंसर्स भी के मल्टीपल चॉइसेस होंगे, और आपको जो ठीक लगता है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने मोबाइल से। दैट्स इट। ओके, 3 more minutes. Ibrahim is here. Come on guys, Zunaira is here as well. 2 more minutes. Last minute, kindly जिसने ज्वाइन करना है कर ले। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start. How many types of NLP? जो आपको आंसर ठीक लगता है उसको सिलेक्ट कर लो आप लोग। 1, 2, 3 or 4। Great, like most of you were correct। अच्छा, इसमें लाइक जिन्होंने ठीक नहीं हुआ मैं बता दूं। बेसिकली एनएलपी की दो टाइप्स हैं, एनएलयू और एनएलजी। ये हमने इवेंट के दौरान डिस्कस की थी। सो ग्रेट जॉब गाइस। चलो अगले क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। Alicia and Fasi is on top. Maha, Faq and Rafia as well. Great job guys। Now अगला क्वेश्चन, face detection is the example of
Computer vision, NLP, ML, or data science? Great, most of you were right. और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिकली मैंने कहा था कि इमेज और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी होगा दैट कम्स अंडर कंप्यूटर विजन टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ भी होगा दैट कम्स अंडर एनएलपी अब लाइक फेस डिटेक्शन इज द एग्जांपल ऑफ आइदर लाइक लाइव वीडियो पे आप डिटेक्ट कर रहे हो या पिक्चर के थ्रू कर रहे हो तो दैट कम्स अंडर कंप्यूटर विजन और एनएलपी का ये पार्ट नहीं है क्योंकि एनएलपी में हम टेक्सचुअल डेटा को डील कर रहे होते हैं और एमएल एज अ सब डोमेन आप कह सकते हो लेकिन जिस टाइम आपके पास स्पेसिफिक डोमेन है कंप्यूटर विजन तो यू ऑब्वियसली शुड सेलेक्ट दिस सो ग्रेट जॉब गाइस लास्ट 6 ठीक थे अब 8 लोगों के ठीक हैं ग्रेट जॉब now let's see who's on top. Fussy is on top. Great. And Ma is third. Saklan is fourth. Great job, guys. Now, do you love memes? It's a pretty easy one. It's easy. Do you love memes? Oh, who doesn't love memes? That's sad, man. These were basically free numbers. By the way, it's sad to see that you didn't love memes. Now who's on top? Abdul Rahman is on top. Usama is the highest climber. Wow, good job, Usama. Let's see. If you are good at web designing, you should leave your job and learn machine learning. Is it true or false? Great. It's really good to see कि most of you are correct. अच्छा अब जिन्होंने like true answer किया है पहली बात तो ये कि मैं ये चीज़ like start में ही डिस्कस की थी कि एमएल में आप सिर्फ तब आओ कि when you think कि like आपका इंटरेस्ट है उसमें या like it clicks with you like आपको यू फील कंफर्टेबल विद इट उसके अलावा अगर आप किसी और करियर में ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इट्स नॉट अ गुड डिसीजन कि आप इंटायरली डिफरेंट लाइक डोमेन्स से शिफ्ट करो वेब डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी नॉन मैथमेटिकल फील्ड और उससे आप मशीन लर्निंग में आ रहे हो विच इज़ वेरी लाइक सॉर्ट ऑफ अ टेक्निकल फील्ड आई वुडंट से मैथमेटिकल लेकिन टेक्निकल फील्ड है तो इट वुडंट बी अ गुड थिंग इवन कि आप किसी और चीज़ में अच्छा लाइक करियर बनाया हुआ है आपने यू शुडंट लाइक जस्ट लीव योर जॉब एंड लर्न मशीन लर्निंग सीखना है आपने साथ साथ सीखते रहें व्हेन यू फील कंफर्टेबल कि यस आई नाउ हैव द upper hand at this and I feel comfortable that I'll succeed as a machine learning engineer, then you should move on with that. Great job, guys. Now let's see who's on top. Fussy is still at the top. Great job, Fussy. And now Ma is again at the third place. Let's see. Next question. Which language is mostly used in machine learning? R, Python, Java, C++. Great, most of you like answered correctly and जिन्होंने C++ आंसर किया है आई नो कि ये क्यों आंसर किया है ये इसलिए आंसर किया है कि अभी रिसेंटली हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने C++ पहले सीखनी है तो थिंग इज़ कि आपने पहले सीखनी है राइट दैट्स राइट लेकिन आपने उस पर स्टक नहीं रहना आपने सीख ली उसके बाद आप किसी मॉडर्न लैंग्वेज पे मूव ऑन कर जाएं वेदर पाइथन आर PHP जावास्क्रिप्ट किसी पे भी आपने मूव ऑन करना है करते हैं लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज आपकी C++ ही होनी चाहिए
तो इधर क्वेश्चन था कि विच लैंग्वेज इज द मोस्टली यूज्ड इन मशीन लर्निंग, एंड पाइथन इज नो डाउट मोस्टली यूज्ड इन मशीन लर्निंग। आर भी यूज होती है लेकिन दैट्स सेकंड, फर्स्ट वाज पाइथन। सो बैड लक फॉर दीज थ्री। इसके अलावा ग्रेट जॉब गाइस, लेट्स सी who's on the top right now. Oh, Maha is at fourth place, Abdul Rahman is at third, and Alicia is still keeping her place. Let's see. Which should you learn first? इन चार तीनों में आपने सबसे पहले क्या सीखना है होगा? पहले आपको मशीन लर्निंग सीखनी चाहिए, डीप लर्निंग या एनएलपी? ग्रेट, मोस्ट ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली। तो सबसे पहले आपने मशीन लर्निंग ही सीखनी है, डीप लर्निंग आपने लास्ट में सीखनी होती है, क्योंकि इसके जो लाइक वो है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इवेंट में कि आपने क्यों ये लास्ट में सीखनी होती है। और एनएलपी कभी भी आप डायरेक्ट किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में हॉप इन नहीं कर जाते। आप पहले लाइक स्क्रैच से स्टार्ट करते हो, जिस तरह मैंने बताया, सी प्लस प्लस सीखो, फिर ऊप सीखो, फिर पाइथन सीखो। उसके अलावा लाइक मशीन लर्निंग के फंडामेंटल सीखो, थियोरेटिकल, फिर प्रैक्टिकल सीखो। सो दैट्स द इंटायर प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो। तो ये उसका मकसद था। सो ग्रेट जॉब गाइस, लेट्स सी हु इज ऑन द टॉप नाउ। Oh, Alicia is on top. Bad luck for Fussy. Next time देखते हैं क्या बनता है. What is the use case of NLP? इनों में NLP का कौन सा एग्जाम्पल है? Predicting stock prices, face detection, self-driving cars और review classification. इनों में से कौन सा NLP का हुआ है? अच्छा, इसमें आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। याद है मैंने अमेज़ॉन की बात की थी कि अमेज़ॉन कैसे यूज़ करता है उसको, एनएलपी को। प्रोडक्ट के वो रिव्यूज़ को चेक करता है और उसको देखता है कि इस प्रोडक्ट के पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, नेगेटिव हैं, फिर उसकी रैंकिंग करता है। तो यहाँ बेसिकली रिव्यू क्लासिफिकेशन का वो मतलब था। और जो जिन्होंने प्रिडिक्टिंग स्टॉक प्राइसेस सेलेक्ट किए, बेसिकली सीन ये है कि ये रिग्रेशन की वो है एग्जांपल, ये हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, सुपरवाइज्ड लर्निंग रिग्रेशन, क्योंकि इसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यूज में कर रहे होते हो डील। और थैंक गॉड कि किसी ने फेस डिटेक्शन नहीं किया। दैट मीन्स यू गाइस आर लर्निंग, दैट्स अ गुड थिंग। और सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एग्जांपल है। और ये फेस डिटेक्शन में भी आती है, लेकिन ये फेस डिटेक्शन कह रहा हूँ, कंप्यूटर विजन में आती है ये। और मोस्टली ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का डोमेन है। और जो रिव्यू क्लासिफिकेशन है, दिस इज अंडर एनएलपी। ये रिग्रेशन का पार्ट है, प्रेडिक्टिंग स्टॉक प्राइसेस, क्योंकि आपको जो आउटपुट मिलती है ना, वो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज हैं। इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 1 to 1 million। लेकिन लाइक रिव्यूज में ऑब्वियसली यू आर डीलिंग विद टेक्स्ट डेटा। जब भी टेक्स्ट डेटा होगा, आप एनएलपी को कवर कर रहे होते हो। लेट्स सी who's on top. Saklan, Umar and Hassan are here. Great job guys. 2 questions left. You need to be a PhD to learn machine learning. Great job, everyone answered correctly. Great. Let's see who's on top now. Same guys. Okay, I think it's the last question. Machine learning and NLP is the same thing. Great. Most of you answered correctly, and those एक बंदे ने गलत आंसर किया है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली मशीन लर्निंग एंड एनएलपी, although like
NLP, MLK umbrella के अंदर आता है, but they are not the same thing. If you remember that like diagram जो हमने share की थी, तो both are entirely different domains. So yeah, this is now let's see the final result. Abdul Rahman, third place. Fasi on second. Let's see who's on top. Alicia. Great job, guys. And Saklan and Hassan are runner-ups. Congratulations, guys. Okay, so that was like really fun. And now, so that was like sort of the entire event. And if you want to reach me via LinkedIn, via GitHub, by the way, all of the code is available on my GitHub if you want. And if you want to contact me personally, I'm available at this mail. And other than that, my LinkedIn is mentioned here, and Discord link is mentioned in the Google Docs. To bookmark it, I usually keep it updated once in a while. So yeah, thank you for an amazing session. Yeah, Thank you so much, but Usman, for joining us, for enlightening us with your knowledge. And I'm really sorry for the bit of the inconvenience in the middle of the session, but it was really indeed a great session. And it is our honor to have you here with us and looking forward to more sessions with you. Thank you so much again. And thank you so much, everyone, for joining us. Please don't forget to fill out the feedback form with us. Man, anything you want to say in the end? Sorry, I thought I cut uh, you down. no, like if any of the audience has any question or anything that they want to ask, feel free to ask. I think there are no questions. Yes. Thank you so much again. Okay. Amazing. Okay. Allah Hafiz, everyone. Bye, Allah Hafiz. Allah Hafiz.